Welcome, myself Purvi Ajmera from Gurukul Academy, Bambura. Now today we will read part 2 of chapter 2, A Gift of Chappals. Mridu peeped through the window. Lali was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and bowstring, her elbows jutting out and her eyes glassy with concentration. Before her, with most of his back to the window, was the bony figure of the music teacher. His head was almost bald with a fringe of oiled black hair coming around his ears and old-fashioned tuft. He was wearing a gold chain around his leathery neck and a diamond ring glittering on his finger as it glided up and down the trunk of the violin. A big foot stuck out from under his gold-bordered vesty edge, and he was thumping time on the floor with the jaunt big toe. He played some notes. Lali followed behind him on her violin, which looked quite helpless and miserable in her hands. What a difference! The music teacher's notes were floating up and settling flawlessly into the invisible tracks of the melody. It seemed the wheels of a train fitting smoothly into the rails and whizzing along, as Ravi said. Mridu noticed that huge burning hand moving smoothly up the violin stem, giving lovely music. Squawk! There was Lali's mistaking again. Amma! Came a moan from the gate. Amma! Oh! Ravi, sent that beggar away, cried his mother from the back veranda where she was talking with Tapi. He has been coming here every day for the past week, and now he should go some other house. Now explanation. मृदु ने खिड़की से देखा और देखा कि लल्ली ने क्या कर रखा है, वायलिन को अजीब तरीके से पकड़ रखा है। वह अपने म्यूजिक के टीचर के साथ थोड़ी दूर बैठी है, जिनकी पीठ खिड़की की ओर दिख रही है। टीचर के सिर पर कुछ ही काले बाल बचे थे, जिनमें उन्होंने तेल लगा रखा था और वह कानों तक लंबे थे। गले में सोने का हार तथा हाथ की अंगुली में एक अंगूठी भी उन्होंने पहन रखी थी। उनके पाँव का अंगूठा बड़ा था और वे इसे जमीन पर धीरे धीरे पटक रहे थे। टीचर वायलिन पर बड़ी आसानी से क्या कर रहे थे, धुन बजा रहे थे, जबकि लल्ली को जो धुन बजाने में क्या करनी पड़ रही थी, मेहनत करनी पड़ रही थी। शिक्षक के गाने मधुरता से भरे हुए थे और लल्ली हर बार धुन नहीं बज पा रही थी, और लल्ली क्या थी, उसको म्यूजिक बजाने में प्रॉब्लम हो रही थी। अपने स्कूल की ओर से जब वह महाबलीपुरम की ट्रिप पर गए थे तो उसने शेर की एक मूर्ति देखी थी और उसे पूरा यकीन था कि वह इस बिल्ली के पूर्वजों से ही थी। उसने बड़े गर्व से कहा कि उसकी यह बिल्ली महाबलीपुरम की ऋषि बिल्ली की क्या है, वंशज है, उनके ही टाइम की है। उसने मृदु को यह भी बताया कि उस टाइम पे मिस्र में बिल्ली की पूजा जो है इजिप्ट में वो की जाती थी। उसे विश्वास था कि यह बिल्ली क्या है, देवी बॉस्टेड की वंशज है। बच्चे खिड़की से झांकते हुए मजे कर रहे थे, तभी माँ ने रवि को बुलाया और भिखारी को भगाने के लिए कहा। वह अब तंग आ गई थी कि भिखारी हर सप्ताह उनके ही घर पर आता है और इस वजह से वह चाहती थी कि भिखारी अब कोई और घर ढूंढ ले। Mridu and Meena followed Ravi out. The beggar had already come to the garden, making himself quite at home. He had spread his upper cloth under the neem tree and was leaning against his trunk, apparently prepared to take a little nap while he was waiting for the alms to come. Go away, said Ravi strictly. Pati says you should go another house to beg from. भिखारी बगीचे में जाकर आराम से बैठ गया। वह नीम के पेड़ के सहारे क्या हुआ था, बैठा हुआ था। उसने अपने कपड़े को भी बिछा रखा था और वह एक नैप लेने ही वाला था। नैप मतलब झपकी लेने ही वाला था कि उसने रवि को उसे वहां से जाने को कहते हुए सुना। यह सुनकर वह आश्चर्य में पड़ गया। Beggar opened his eyes very wide and looked at each of the children one by one. The women of this house, he said finally in a voice shocked with emotion, are very kind people, have kept my body and soul together on their kindness for a whole week. I cannot believe that they would turn me away. He shouted, Amma, Amma, oh, said his well might be, but it certainly wasn't frail. It began in a deep, strong rumble somewhere in his weathered abdomen and come booming out of his mouth with its new remaining teeth tainted brown with betel chewing. Ravi, tell him there's nothing left in the kitchen, announced Rukkumani, and he should not come again. Tell him that she sounded fed up. यह सुनकर वह आश्चर्य में पड़ गया तथा उसने उसी वक्त घर की मालकिन से मिलने के लिए बोला। चिड़ी हुई रुक्कुमणि ने रवि से कहा कि किचन में खाने के लिए कुछ भी नहीं है तथा भिखारी को यहाँ दोबारा कभी न आने को कहा।
रवि डिड नॉट नीड टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर, और रवि को वापस वो बात रिपीट करने की ज़रूरत नहीं थी. वॉट इज मदर कुड इजीली बी हियर्ड बाय ऑल स्टैंडिंग अंडर द नीम ट्री, क्योंकि उसकी मदर ने इतनी जोर से बोला था कि जो नीम के पेड़ के नीचे खड़े थे उन सबको वो बात सुनाई दी थी कि उसने बेगर को वहाँ से जाने के लिए बोला. द बेगर स्टूड अप एंड साइड, ही टोल्ड दैट ही वुड गो अवे आफ्टर टेकिंग सम रेस्ट. तो बेगर ने बोला कि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करने दीजिए, उसके बाद मैं चला जाऊँगा. I will go, he said unenthusiastically. Only let me have a rest near this tree. The hot sun has melted the tar on the road. My feet are already blistered. He extended his feet to show big pink peeling blister on the sole of his bare feet. और वो बोलता है कि मुझे यहाँ पे रेस्ट करने दो, क्योंकि बाहर इतनी धूप और रोडें इतनी गर्म हो गई कि उसकी वजह से क्या हुआ, मेरे जो पैर है उनके अंदर क्या हो गए, छाले पड़ गए. आई सपोज ही डज नॉट हैव द मनी टू बाय चप्पल्स. मीदू विस्पर टू मीना. रवि, डू यू हैव एन ओल्ड पैर इन द हाउस समवेयर. तो वो जो बच्चे होते हैं वो उसकी इस बात से सिंपैथेटिक हो जाते हैं उसकी तरफ, और मृदु मीना और रवि से पूछते कि क्या तुम्हारे घर में कोई पुरानी चप्पल है. I don't know, said Ravi. Mine are too small so they cannot fit his feet, or I had given them to him and his feet were larger than Midhu's and Meena. तो रवि बोलता है कि पता नहीं, लेकिन मेरी जो चप्पल है वो बहुत छोटी है, वो उसके पैरों में नहीं आएगी. और I would have given them to him and his feet were larger than Midhu's and Meena. और अगर हम तुम्हारे स्लीपर भी दे दे तो भी उसके पाँव क्या है, तुम लोगों से ज़्यादा बड़े हैं. The beggar was shaking out his upper cloth and tightening his dhoti. He raised his eyes and looked awfully at the road glittering in the afternoon heat. और जो बेगर है वो क्या करता है, भिखारी अपने कपड़ों को झटकता है और अपनी धोती को टाइट बांधता है और रोड की तरफ उस गर्मी को देखता है और उस गर्म रोड को देखता है. He needs something on his feet. Meena said. Her big eyes started feeling it's not fair. तो मीना बोलती है कि इसको पहनने के लिए कुछ चाहिए. उसकी जो आंखें हैं वो इधर उधर कुछ न कुछ ढूंढ रही है, उसके साथ ये सही नहीं हो रहा है. Said Ravi. Let me think about it. तो रवि बोलता है रुको मुझे सोचने दो. Blubbering, it's not fair, it's not fair, isn't going to help. In 2 minutes he will be frying his feet on that road. Only a pair of चप्पल could save him. तो रवि बोलता है कि बाहर इतनी गर्मी है कि अगर वो चप्पल पहन के नहीं जाएगा तो 2 मिनट में उसके पैर क्या होंगे, रोड पे फ्राई हो जाएंगे. खाली पेयर ऑफ चप्पल ही जो है वो उसकी क्या कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं. सो वेयर डू वी अरेंज देम. कम लेट सर्च द हाउस. तो वो बोलते हैं कि हम कहाँ अरेंज करें, तो वो बोलते हैं चलो हम पूरे घर में ढूंढते हैं. ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस. वो उनको अंदर पुश करता है. Just as she stepped into the veranda, Mridu's eyes spotted the odd-looking chappal she saw when she arrived. जैसे ही क्या होता है वो वरांडा में जाते हैं और मृदु की आइज पड़ती है कि जब वो आती है तो उस टाइम क्या होता है, एक ओड लुकिंग चप्पल जो है वो पड़े हुए होते हैं. रवि, शी विस्पर्ड टू हिम, हु डू दी चप्पल बिलोंग टू. और वो रवि को बोलते हैं कि देखो ये चप्पल है, हम ले सकते हैं. तो रवि बोलता है कि ये चप्पल किसके हैं. रवि turned and looked at the shabby looking but sturdy old slipper. He beamed and nodded. This will fit his feet, he said, lifting them. Mridu and Meena followed him apprehensively back into the garden. फिर क्या होता है, रवि उन चप्पल को उठाता है, इधर उधर करके देखता है और वो सोचता है कि क्या ये उसके पैर में फिट हो जाएंगे. फिर वो उन चप्पल को लेता है और मृदु और मीना के साथ कहाँ जाता है, फिर से गार्डन के बैक में जाता है. एप्रहेंसिवली मतलब फीलिंग वरीड अबाउट समथिंग दैट यू आर गोइंग टू डू और दैट इज गोइंग टू हैपन. कि हम क्या कर रहे थे, किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं जो वो होगी या नहीं होगी. वैसे ही रवि क्या कर रहा था, ये सोच रहा था कि वो जो स्लीपर है वो उनको आएंगे या नहीं आएंगे. हियर एड्रेस रवि टू द बेगर ड्रॉपिंग द स्लीपर बिफोर हिम. वियर दिस एंड डोंट रिटर्न. द बेगर stared at the sleeper quickly, flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them and left, muttering a lucky thing to the children. In a minute he had vanished around the corner of the lane. और रवि उस स्लीपर को बैगर के पैर में डालता है और उसको बोलता है कि ये चप्पल पहनो, यहाँ से चले जाओ और वापस यहाँ पर कभी मत आना. और बैगर क्या करता है, अपने टॉवेल को अपने शोल्डर पर डालता है और उन चप्पल को पहनता है और उन चप्पल को पहन के निकल जाता है. The music master came out of the house and looked unappreciative at the three of them sitting calmly under the tree playing marble. Then he started searching for his chappal in the veranda where he had put them. फिर म्यूजिक टीचर जो है वो घर से बाहर निकलता है और वो उन तीनों को पेड़ के नीचे बैठा हुआ देखता है और वो वहाँ पे क्या खेल रहे होते हैं, पत्थर से खेल रहे होते हैं. फिर वो क्या करता है, अपने चप्पल्स को ढूंढता है इधर उधर वरांडा में जहाँ पे उसने खोले थे. Lali, he called after a few moments. She came up to him. Have you seen my slipper, dear? I remember having kept them there. फिर वो थोड़ी देर स्लीपर ढूंढने के बाद लाली को बुलाता है और बोलता है कि क्या तुमने मेरे स्लीपर देखे हैं डियर, मैंने वो जो चप्पल थे वो यहीं पर खोले थे बट अब वो यहाँ पर नहीं हैं.
Ravi, Mridu and Meena without a sound watched Lali and the music master searching every corner of the veranda. He scurried around, searching over the railing and crouching near the flower pot to look between them. Brand new they were. I went all the way to Mount Road to buy them. He kept on saying, "Do you know the cost a whole month fees?" रवि, मृदु और मीना बिना कुछ बोले लाली को देखते हैं एंड म्यूजिक मास्टर सर्चिंग, और म्यूजिक मास्टर क्या करता है, वरांडे के हर कॉर्नर में उन चप्पल को ढूंढता है. ही स्करीड अराउंड सर्चिंग ओवर द रेलिंग एंड क्राउचिंग नियर द फ्लावर पोट टू लुक बिटवीन देम. वो फ्लावर कोट के पास जो भी रेलिंग होती है उन सबके पास अपने चप्पल को ढूंढता है और बोलता है ब्रांड न्यू, वो बहुत नए के नए चप्पल हैं. मैं उनको खरीदने के लिए क्या गया, माउंट रोड पे गया, और तुम्हें पता है कि उसकी प्राइस क्या है, तुम्हारी पूरे महीने की फ़ी जो है वो जूते की प्राइस है. Soon Lali went into her mother. Rukumani came looking stressed with Pati coming with her. फिर वो उसकी मदर के पास जाती है और बोलती है कि उनके जो स्लीपर है वो गुम गए हैं. Where could the चप्पल्स be? It's really quite shocking that someone might have stolen them. और वो बोलते हैं कि ये शॉकिंग है कि कोई यहाँ से चप्पल चुरा कर ले गया है. A number of vendor come to door worried Pati. पार्टी बोलता है कि बहुत सारे वेंडर जो है हमारे डोर पर आते हैं. रुक्कुमणी स्पॉटेड रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री. और रुक्कुमणी स्पॉटेड करती है किसको, रवि, मृदु और मीना को, कि वो पेड़ के नीचे बैठे हुए होते हैं. हैव यू चिल्ड्रन, शी बिगेन एंड देन सीइंग देम क्यूरियसली क्वाइट वेंट टू मोर स्लोली सीइंग एनीवन लर्किंग अराउंड द वरांडा. अ शार्प वी शेप्ड लाइन हैड अपीयर्ड बिटवीन हर आईब्रोज. रुक्कुमणी स्पॉटेड रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री. हैव यू चिल्ड्रन, शी बिगेन एंड then seeing them curiously quiet went on more slowly seeing anyone lurking around the veranda. Sharply shaped line had appeared between her eyebrows. Another annoyed Mridu thought with a quiver. She would not be so upset if she was told about the poor beggar with sores on his feet, she convinced herself. Having a deep breath, she cried, "Rukumani, a beggar came here. Poor fellow, he had such boil on his feet." So said Rukumani coldly, turning to Ravi. The music master chappal were given to that old beggar who comes here. लल्ली ने रुक्कुमणी को बताया तो उन्होंने बच्चों से पूछा कि क्या उन्होंने यहाँ पर किसी की चप्पल उठाते हुए देखा है. रुक्कुमणी नाराज़ हो रही थी तो मृदु अब और रुक नहीं पाई. उसने उन्हें बताया कि उन लोगों ने म्यूजिक टीचर की चप्पल उस भिखारी को दे दी है. रुक्कुमणी अंदर गई और उन्होंने गोपू मामा की नई सी चप्पल लाकर शिक्षक को दे दी. She stood rigid and straight by the front door. She was demonstrating clearly that she wanted him to leave quickly. When he had clattered off in his new chappal, she said, "Midus come in, have come stiffin. Frankly, how do such ideas come in your mind? Thank God your Gopu Mama does not put his chappal to work." As she stepped toward the kitchen with Mridu and Meena, she unexpectedly began to laugh, but he has always in such a hurry to throw off his shoes and socks and get into his chappal as soon as he become home. What will be his reaction this evening when I tell him his new chappal have been given to the music master? रुक्कुमणी अंदर गई और उन्होंने गोपू मामा की नई सी चप्पल लाकर म्यूजिक टीचर को दे दी. म्यूजिक टीचर चप्पल पाकर खुश हुए पर उन्होंने ऐसा दिखावा किया मानो यह चीज़ उन्हें एक्सेप्ट नहीं थी. रुक्कुमणी एक प्यारी मम्मी. टीचर ने रवि को एक बंदर कहा. भगवान हनुमान की प्राकृतिक जिससे बता रहा है कि रुक्कुमणी को यह पसंद नहीं आया था. उन्होंने टीचर को तुरंत वहाँ से जाने को कह दिया. जब वह चले गए तो उन्होंने बच्चों को घर के अंदर बुलाया और उन्हें थोड़ा नाश्ता करने को दिया. उन्होंने भगवान का थैंक किया कि गोपू मामा चप्पल पहनकर दफ्तर नहीं गए, पर दफ्तर से लौटकर इन्हें उसकी ज़रूरत होती है. उन्हें लग रहा था कि वे उन्हें क्या कहेंगे. उन्होंने इस घटना का आरोप अपने ऊपर लेने का फैसला किया. थैंक यू.